Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Continue my topic for class 9. But today we start the new chapter, chapter number 2. This chapter, name of this chapter is the polynomial. Polynomial, the form by the two words, poly plus nomial. Where poly means there are many and nomial means terms. That means any algebraic expression formed by the many terms, maybe one term, maybe more than one term, maybe more than two terms. That is called polynomial. But simply we say it is called polynomial. For example, suppose we write here x plus 2. It is the polynomial. Suppose we write 2x square. It is also polynomial. But it is they have only single term. But also it is called the polynomial. Maybe 3x square plus 4x minus 3. It is also a polynomial. These all are algebraic expression. So first we discuss about the some terms for using in this polynomials. कुछ ऐसी टर्म्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिनका मीनिंग आपको जरूर मालूम होना चाहिए. फर्स्ट इज द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं. x plus 3. सेकेंड एग्जांपल 3x square minus 4x plus 5. Now coefficient of x in this polynomial is 1 and constant term is this one. And coefficient of x square is 3, coefficient of x is minus 4 and constant term is 5. These all are called coefficients. किस वेरिएबल का कोफिशिएंट्स क्या है ये अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो इट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट्स. फॉर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, सपोज 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2. सपोज वी आस्क व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल. So what is the answer? Coefficient of x square is the minus 4. What is the coefficient of x cube? The power is the 3. So what is the coefficient of x cube is 7. Coefficient of x is plus 3. It is the plus 3. And what is the constant term? Constant term is the minus 2. You know, this constant also the coefficient of x power 0. Because x power 0 is the answer is the 1. ओके, यहां पर भी x की पावर 0 है क्योंकि वैल्यू 1 है इसलिए हम उसको लिखते नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्री. व्हाट इज द डिग्री फॉर अ पॉलिनोमियल? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द पावर. डिग्री मीन्स द पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल. वापस से मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूं. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? नाउ हाईएस्ट पावर इज द 1. सो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज द 2. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज द here 3. So highest power of algebraic expression, that is called degree of a polynomial. Is clear? Coefficients and then degree. Next is we write the third part, linear and quadratic and next is cubic. अभी हम
इन तीन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक. What is the meaning of linear, quadratic and cubic? Any polynomial, generally polynomial denoted by px. P means polynomial, x वेरिएबल जो भी यूज कर रहे हो, अगर y यूज कर रहे हो तो यू कैन राइट py, z यूज कर रहे हो यू कैन राइट pz, but here we write in the form of x, so write px. So what px equal to 7x plus 3. So what is the degree of this polynomial? Now degree is equal to 1. Any polynomial which has single degree, 1 degree, that is called linear polynomial. ऐसे polynomial जिनकी डिग्री 1 हो उनको हम linear polynomial बोलते हैं. Now quadratic polynomial, any one polynomial is given by 2x square minus 5x plus 3. Highest power is 2, so degree is 2. So here we write the degree is equal to 2. So this is called quadratic polynomial because its degree is 2. Similarly cubic. Cubic is, now write the one polynomial is 5x cube minus 7x square plus 3x plus 2. आगे कोई टर्म अगर हो या नहीं हो, but here the highest power is the 3, so that is degree is the 3. So write here degree is equal to 3. So this is called cubic polynomial. Means any algebraic expression, any polynomial which has degree is 3, that is called cubic polynomial. जिसकी पावर 3 हो उनको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी पावर 2 हो मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री अगर 1 होती है उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. ये बात हो गई आपके लिए एक सिंपली एक्सरसाइज. हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 इज कंप्लीट. इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दे आर गिवन इन सेकेंड. अब यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल को एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करता हूँ. सपोज वी राइट द पी एक्स इक्वल टू x plus 1 upon x. There is second term is given 1 by x. So this 1 by x means that power is x raised to the power minus 1. अगर मैं इस x को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये पावर 1 नेगेटिव पावर में इंक्लूड हो जाएगी. तो यहाँ पर मैं इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं बोलूँगा. इज द सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज नॉट ए कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल के लिए एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द ऑलवेज होल नंबर. होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, all the positive number, not a fraction number, not a negative number. So degree is not a negative and not a fraction number, rational number. So that is whole number only. The degree means whole number, that is called the polynomial. Otherwise it is not called polynomial. उसको अपन simply एक algebraic expression के नाम से बोलेंगे. अगर suppose मैं लिखता हूँ px is equal to simply 7. अब आप कहेंगे सर इसकी डिग्री क्या होगी? तो simply is the constant term, इसके साथ में क्या है? x power 0. तो that means degree is 0 and 0 is the also whole number. और whole number हम स्टार्ट करते हैं 0 से. 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई डिग्री की. और डिग्री अगर होल नंबर है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया. कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी नंबर, एनी टर्म्स, वो भी अपन ने क्लियर कर दिया. और अपन बात करते हैं अगर डिग्री की तो डिग्री भी आपके लिए क्लियर हो गया. तो एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज में कोई भी एनी डाउट्स हो तो जरूर आप डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. अभी तक मैं ये देखते हुए आ रहा हूँ कि जितने भी मैंने लेसन्स बनाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लेसन्स को आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो और ना उसको देख रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है. वो एक आपकी चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगा
ये जितने आप लेक्चर्स देखोगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ और मैं यहाँ पर हर एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहा हूँ और चैप्टर वाइज, मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिसंबर अदरवाइज लास्ट जनवरी तक मैं कंप्लीट सिलेबस आपका करवा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंथी था इसलिए थोड़ा अपन ने टाइम लिया। अब सेकंड चैप्टर से अपन थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे और वो इजीली अपन कंप्लीट जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पर आप कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहें और कंटिन्यू आप उसको देखते रहें। अगर नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए फिर कोई प्रॉब्लम, आगे अगर आप देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं एक्सरसाइज 2. देखो आज एक्सरसाइज हमने 2.1 कंप्लीट कर ली और एक्सरसाइज 2.2 हम इसको भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। इज द वेरी सिंपल। अब 2.2 में क्या है? 2.2 में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज सिंपल वन पॉलिनोमियल px इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से ले लीजिए, बुक में गिवन ही है, आप बुक के अकॉर्डिंग चलो, बुक का हर एग्जांपल आप करिए। यहां मैं अपनी मर्जी से सपोज यू विल राइट 3x plus 5, this is the linear polynomial. Now find the value of this polynomial. Means value of polynomial means find the solution of this polynomial. Solution means finally find the value of x. What is the value of x for which this polynomial becomes 0? हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो x वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन गई जो आप 8th क्लास में भी करते हुए आ रहे हैं। तो व्हाट इज px? px इज 3x plus 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करने का इजी मेथड, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। 3x is equal to is minus 5, and now this 3 also shift on right hand side, x equal to minus 5 by 3. So what is the value of x? X is equal to minus 5 by 3. So minus 5 by 3 is the zeros of this polynomial, value of x, this linear polynomial. यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। आप अभी तक ये सोचते हुए आ रहे हो कि 5 को हमने शिफ्ट किया है, 5 कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको चलकर वहाँ चला गया, हमने 5 को शिफ्ट नहीं किया। एक्चुअली मुझे क्या करना है, फाइनली यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस 5 को रिमूव करना है, हटाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ एक बार यहाँ -5 किया और यहाँ भी -5 किया। इन लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए और 3x इक्वल टू 5 और 5 minus 5, यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 0। क्लियर? वैसे ही यहाँ पर x इक्वल टू, अब मुझे 3 यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो 3 को रिमूव करने के लिए इस 3 से डिवाइड करूंगा, तो राइट हैंड साइड में भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से 3 यहाँ कट हो गया तो इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। तो आंसर इज 0। लेकिन सिंपल समझाने के अकॉर्डिंग हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपल ये बोल देते हैं कि दिस नंबर इज द शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन हम चेंज कर देते हैं, इसीलिए साइन चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -5.3। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ एक बात और करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस of the polynomial. Zeros of the polynomial means value of x. जैसे यहाँ अपन ने x की वैल्यू फाइंड आउट की -5.3. This -5.3 is called zeros of this polynomial. Simple x plus 5 is equal to 0. So what is the zeros of this polynomial? That means x equal to -5. This -5 is called the zeros.
जीरो का मीनिंग यहाँ पे वो जीरो नहीं है, दैट मीन वो वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है, वो वैल्यूज को अपन जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म को डिफाइन करना, हम पीछे से रह गए थे, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट इज क्लियर, डिग्री इज क्लियर एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो बात होगी लीनियर पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट ये बात होगी यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं, सपोज वन पॉलिनोमियल इज गिवन px इक्वल टू 3x minus 7 and find the value of this polynomial at x equal to -2. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वन पॉलिनोमियल इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2। किसी भी पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है -2 पे, तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 इज इक्वल टू पुट x इक्वल टू -2। कुछ नहीं करना है, वहां x की जगह -2 पुट कीजिए, बहुत इजी हो गया। 3 into -2 means minus plus minus, 3 into 2 6 minus 7 and this both are negative number, so minus 13 is the answer. So minus 13 is the value of this polynomial at x is -3. We take one more example. Suppose we take px equal to 5x square minus 7x plus 2 and find the value of at suppose 3. What is the value of this polynomial at x equal to 3? x equal to 3 means आपको 3 पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं, we put x equal to 3, p3 equal to 5 3 whole square minus 7 3 plus 2। जहां जहां x है वहां पे आपको 3 पुट करना है। सिंपल, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल गए आपको, अब इसको कैलकुलेट करना है। Simple calculation, 5 into 3 square is 9, 3 into 3 9, minus 7 into 3 21 and plus 2. Now 9 into 5 is 45 and minus 21 and plus 2, चाहे तो पहले से इसको सॉल्व कर लीजिए, then minus 90 and equal to 45 minus 90. So this is the 15 and 15 minus 9 is 15 minus 9 is 6 and then 3 minus 1 is the 2, 26. So answer is there 26. 15 minus 9, so 6 is the clear and 3 minus 1 is 2. Okay, this is the answer is right. So 26. So what is the value of this polynomial at x equal to 3? So value of this polynomial at 3 is 26. 26 is the final answer. It is the exercise number 2.2 and also it is the clear, इसमें और मुझे दूसरा कोई क्वेश्चन नजर आ नहीं रहा है, सभी इसी टाइप के क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम वही है। तो ये आपका बन जाता है एक्सरसाइज 2.2 इज द कंप्लीट। सो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ये आप कंप्लीट कीजिए आज। ये आपका दो एक्सरसाइज मैंने आज कंप्लीट कर दिए। चैप्टर को अपन जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, गुड डे।